السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ ہندوستان میں کرونا وائرس کے کیسز کی تعداد ہر دن کے ساتھ بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ پیر کو ملک میں تقریباً 1,69,000 نئے کرونا کیسز درج ہوئے ہیں، جو اب تک کا سب سے بڑا ریکارڈ ہے۔ اگر کورونا کی یہی رفتار برقرار رہی تو جلد ہی ملک میں روزانہ 2 لاکھ تک کیسز درج کرنا شروع ہو جائیں گے۔ حکومت کی جانب سے جاری کردہ اعداد شمار کے مطابق پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران 904 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ فروری میں جہاں ہندوستان میں ہر روز کورونا کیسز 10,000 تک آ رہے تھے، مارچ میں یہ تعداد روزانہ 1 لاکھ تک پہنچ گئی، لیکن اب اپریل میں روزانہ 1,50,000 سے زیادہ کیسز درج کیے جا رہے ہیں۔ یہ لگاتار تیسرا دن ہے جب 24 گھنٹوں میں 1.5 لاکھ سے زیادہ کیسز سامنے آئے ہیں۔ پورے ملک میں بڑھتے کووڈ کیسز کے بیچ حکومت کی جانب سے تمام مذہبی تہواروں اور عبادتوں پر روک لگائی جا رہی ہے۔ ایسے میں ہریدوار میں مہا کمبھ کے دوران کورونا پروٹوکول کی خلاف ورزیاں سامنے آئی ہیں اور حکومت پولیس سبھی خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے۔ ہریدوار مہا کمبھ میں آج دوسرا شاہی اسنان ہو رہا ہے۔ اس شاہی غسل میں تمام اکھاڑے کے سادھو سنت آستھا کی ڈبکی لگا رہے ہیں۔ ہزاروں کی تعداد میں عام لوگ یہاں بھیڑ کی شکل میں یہاں ڈبکی لگانے کے لیے پہنچے ہیں۔ نیپال کے آخری بادشاہ گیانندر ویر سنگھ بھی ہریدوار پہنچ گئے ہیں۔ وہ بھی سنتوں کے ساتھ شاہی اسنان کریں گے۔ بھیڑ ہونے کی وجہ سے کئی جگہوں پر کورونا پروٹوکول کی خلاف ورزی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ نہ سوشل ڈسٹینسنگ کو عمل کر رہے ہیں، نہ ہی کوئی ماسک لگانے کے لیے تیار ہے۔ کورونا وائرس کے بڑھتے اثر کے درمیان اتر پردیش کی یوگی حکومت نے مذہبی مقامات پر بیک وقت 5 سے زیادہ افراد کے جمع ہونے پر پابندی عائد کر دی ہے۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے عہدیداروں کو ہدایت دی کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ کسی بھی مذہبی مقام پر ایک بار میں 5 سے زیادہ افراد داخل نہ ہونے پائے۔ خیال رہے کہ ملک میں 13 اپریل سے رمضان شروع ہونے والا ہے، جبکہ 14 اپریل سے ہندوؤں کے نوراتری تہوار شروع ہوں گے۔ رمضان کے مہینے میں جہاں نمازیوں کی تعداد کافی بڑھ جاتی ہے، وہیں عشاء کے وقت تراویح کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے، جس میں کافی تعداد میں لوگ شامل ہوتے ہیں۔ وہیں نوراتری کے دنوں میں مندر جانے والے افراد کی تعداد بھی بڑھ جاتی ہے۔ ایسے حالات میں ریاستی حکومت کے فیصلے سے کئی لوگوں کو مایوسی ہو سکتی ہے۔ تاہم حکومت کا موقف ہے کہ کورونا کی دوسری لہر خطرناک ہو چکی ہے، لہذا پابندیوں کا اطلاق لازمی ہو چکا ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے ملک کے عوام سے کووڈ-19 وبا کے خلاف پورے ملک میں جاری مہم کے تحت آج سے شروع ٹیکہ اتسو یعنی ٹیکہ جشن کو کامیاب بنانے کی درخواست کی۔ وزیراعظم مودی نے ٹویٹ کر کے عوام سے کہا کہ آج سے ہم سبھی پورے ملک میں ایک اتسو کا آغاز کر رہے ہیں۔ کورونا کے خلاف لڑائی کے اس مرحلے میں ملک کے عوام سے میری 4 درخواستیں ہیں۔ وزیراعظم نے نمو ایپ پر اپنے چاروں اپیل کے بارے میں تفصیل سے لکھا ہے۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا کہ اگر مغربی بنگال کے عوام کہیں تو وہ استعفیٰ دینے کے لیے تیار ہیں۔ تاہم سینئر بی جے پی لیڈر نے کہا کہ ترنمول کانگریس کی سربراہ اور چیف منسٹر ممتا بنرجی کو 2 مئی کو استعفیٰ دینا پڑے گا، کیونکہ ٹی ایم سی کو جاریہ اسمبلی انتخابات میں شکست ہوگی۔ ٹی ایم سی چیف نے کوچ بہار میں چوتھے مرحلے کی رائے دہی کے دوران سی آئی ایس ایف عملے کی فائرنگ میں 4 افراد کی ہلاکت کے بعد امت شاہ سے استعفے کا مطالبہ کیا تھا۔ امت شاہ نے کہا کہ دیدی میرا استعفیٰ مانگ رہی ہے، اگر مغربی بنگال کے عوام مطالبہ کریں تو میں استعفیٰ دے دوں گا۔ میں اپنا سر جھکا کر ایسا کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن ممتا کو 2 مئی کو چیف منسٹر کی گدی چھوڑنی پڑے گی۔ ڈی جے ایم کے گروپ کے سربراہ ومل گارونگ نے کہا کہ کوچ بہار میں ہفتے کو سی آئی ایس ایف کی فائرنگ بنگال انتخابات میں ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوگی، جس میں 4 جانیں گئی ہیں۔ انہوں نے ادعا کیا کہ بی جے پی کو انتخابات کے اگلے 4 مراحل بالخصوص ریاست کے شمالی حصوں میں ووٹرز کے غیظ و غضب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ پی ٹی آئی کو ایک انٹرویو دیتے ہوئے ومل گارونگ نے کہا کہ علیحدہ ریاست ایک ایسا خواب ہے جو پہاڑی علاقے میں رہنے والا ہر گورکھا دیکھتا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس مسئلے کے مستقل سیاسی حل اور دارجلنگ اور آس پاس کے علاقوں کو مجموعی ترقی کے لیے ٹی ایم سی کی مساعی انتہائی حوصلہ افزا ہے۔ گزشتہ 12 سال سے گورکھا طبقے کو جھوٹے وعدوں کے ذریعے دھوکہ دینے پر بی جے پی پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے گارونگ نے کہا کہ وہ زعفرانی کیمپ کو ایک ایسا سبق سکھائیں گے جو وہ ہمیشہ یاد رکھے گا۔ مہاراشٹر کے چیف منسٹر ادھو ٹھاکرے نے ریاستی کووڈ ٹاسک فورس کے ارکان کے ساتھ ایک میٹنگ میں آکسیجن پلانٹس کی تنصیب، بیڈز کی تعداد میں اضافہ اور دیگر طبی سہولیات کے بارے میں بات چیت کی۔ اس کے علاوہ انہوں نے ریمڈیسیویر انجیکشن کی دستیابی کے بارے میں بھی غور کیا۔ انہوں نے ایک مرتبہ پھر لاک ڈاؤن کے نفاذ کے ذریعے کورونا وائرس کی منتقلی کی چین کو توڑنے کی ضرورت پر زور دیا اور کہا کہ مشاورت کے بعد نئی رہنمائی ہدایات جاری کی جائیں گی۔ مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی نے الیکشن کمیشن پر سیدھا حملہ کرتے ہوئے کہا کہ الیکشن کمیشن کا نام بدل کر ایم سی سی یعنی مودی کوڈ آف کنڈکٹ رکھنا چاہیے۔
बंगाल असेंबली इंतखाबात के चौथे मरहले में पोलिंग के दौरान जमकर तशद्दुद और कोच बिहार इलाके में 4 लोगों की मौत होने पर जारी हंगामे के दरमियान इलेक्शन कमीशन ने किसी भी सियासी जमात के कोच बिहार जाने पर रोक लगा दी है। इलेक्शन कमीशन के इस फैसले के बाद मोहतरमा बनर्जी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन का नाम बदलकर MCC रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि बीजेपी अपनी ताकत का इस्तेमाल कर सकती है, लेकिन दुनिया में कोई भी मुझे अपने लोगों के पास जाने और इनका दर्द बांटने से रोक नहीं सकती। वो मुझे कोच बिहार में 3 दिनों के लिए अपने भाइयों और बहनों के पास जाने से रोक सकते हैं, लेकिन मैं चौथे दिन वहां जाऊंगी। राजस्थान के बारन जिले के इलाके छबड़ा में इतवार को 2 नौजवानों को चाकू घोंपने के बाद फिरकेवाराना तशद्दुद फूट पड़ा, जिसके दौरान हुजूम ने दर्जनों गाड़ियों और दुकानों को आग लगा दी और तोड़फोड़ मचाई। ओहदेदारों ने सूरत हाल के पेश नज़र कर्फ्यू नाफिज कर दिया और इंटरनेट बंद कर दिया। पुलिस ने तशद्दुद पर आमदा हुजूम को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस के शेल्स का इस्तेमाल किया, लेकिन 2 फिरकों से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान ने जो लाठियों, सलाखों और हथियारों से लेस थे, रात तक भी गड़बड़ जारी रखे और एक फायर इंजन को भी आग लगा दी। हुजूम ने पुलिस और सरकारी गाड़ियों के बशमूल इमलाक को नुकसान पहुंचाया। सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस विनीत बंसल ने जो मुकाम पर मौजूद थे बताया कि सूरत हाल बहुत कशीदा है, हुजूमों का तशद्दुद जारी है और हम सूरत हाल को काबू में लाने की कोशिश कर रहे हैं। हलाकतों के बारे में फौरी तौर पर कुछ नहीं बताया गया। ओहदेदारों ने बताया कि इजाफी फोर्सेस को तलब कर लिया गया है। हुकूमत दिल्ली की जानिब से कोविड-19 से निपटने के लिए मुमकिन इकदाम किए जा रहे हैं। चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने आज ये बात बताई। उन्होंने कहा कि 15 दिनों से दिल्ली में कोविड-19 मरीजों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। माह मार्च के औसत में मुल्क के दारुल में रोजाना 200 तक 250 नए केसेस मंजर-ए-आम पर आ रहे थे, लेकिन चौथी लहर में मरीजों की तादाद में मजीद इजाफा होता जा रहा है। उन्होंने कहा कि नवंबर 2020 के दौरान तीसरी लहर से कहीं ज़्यादा चौथी लहर में अफराद मुतासिर हो रहे हैं और अब शहर में 24 घंटों के दौरान केसेस की तादाद 10,000 से ज़ायद हो गई है। सऊदी अरब में रमज़ान मुबारक का चांद नजर नहीं आया और अरब मुल्क में पहला रोज़ा मंगल 13 अप्रैल को होगा। सऊदी अरब की रोयत हिलाल कमेटी की जानिब से यह ऐलान इतवार की रात किया गया। सऊदी हुकूमत ने खाने काबा और मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में रमज़ान मुबारक में नमाज तरावी को 10 रकात तक महदूद रखने का हुक्म जारी कर दिया। सऊदी गज़ीट के मुताबिक शाह सलमान ने माह रमज़ान में मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में नमाज तरावी में रकात की तादाद को निस्फ करने का हुक्म जारी कर दिया है। मदीना मुनव्वरा शरीफ के मामलात की निगरानी करने वाले शेख अब्दुर्रहमान अल सुदैस का कहना है कि कोरोना वायरस के तनाजुर में तरावी की रकात को 20 से कम करके 10 कर दिया गया और इन्हें भी तमाम तर हिफाजती इक़दाम और तदाबीर के साथ अदा किए जाएंगे। सऊदी हुक्काम ने दोनों मुक़द्दस मसाजिद में माह रमज़ान में उम्रे और इबादत की इजाज़त दे दी है, ताहम ज़ायरीन को इतिकाफ़ और इफ्तार की इजाज़त नहीं होगी। सऊदी अरब के शाही ख़ानदान के फ़र्द शहज़ादा बंदर बिन फैसल आल सऊद इंतकाल कर गए। सऊदी सरकारी खबर रसां इदारे के मुताबिक ऐवान शाही की जानिब से शहज़ादा बंदर बिन फैसल आल सऊद के इंतकाल का इलामिया जारी किया गया है। इलामिया के मुताबिक शहज़ादा बंदर बिन फैसल की नमाज जनाजा आज अदा की जाएगी। रियासत तेलंगाना में रमज़ान मुबारक में कोविड गाइडलाइंस पर अमल करते हुए मसाजिद में इबादतों के अहतमाम की इजाज़त दी गई है। हुकूमत ने रमज़ान मुबारक के सिलसिले में अभी तक कोई अलहदा अहकाम जारी नहीं किए हैं और महकमा अखिलती बहबूद के अहदेदारों का कहना है कि कोविड क़वायद पर अमल आवरी के जरिए इफ्तार और तरावी का अहतमाम किया जा सकेगा। महकमा अखिलती बहबूद के ज़राए का कहना है कि हुकूमत की जानिब से अभी तक कोई नए अहकाम मौसूल नहीं हुए जिनका रमज़ान मुबारक पर इतलाक़ हो, लिहाजा मौजूदा हालात में मास्क के इस्तेमाल और समाजी फासले के साथ मसाजिद में इफ्तार और तरावी का अहतमाम मुमकिन रहेगा। शहर की 2 अहम मसाजिद मक्का मस्जिद और शाही मस्जिद में इफ्तार और तरावी के इंतजाम मुकम्मिल कर लिए गए हैं, जो महकमा अखिलती बहबूद के ज़ेर इंतज़ाम है। हुकूमत ने गुज़िश्ता माह जो अहकाम जारी किए थे, इनके मुताबिक मजहबी तकारीब में 100 अफराद की शिरकत की इजाज़त दी गई थी, लेकिन रमज़ान मुबारक के सिलसिले में कोई अलहदा रहनुमाना खतूत जारी नहीं किए गए। महकमा अखिलती बहबूद ने मक्का मस्जिद में 3 दहे तरावी की मंजूरी दे दी है। चांद रात से हाफिज़ कारी मोहम्मद रिजवान कुरैशी खतीब मक्का मस्जिद रोज़ाना 3 पारे सुनाएंगे। दूसरे दहे में मौलाना लतीफ़ अहमद शेख जामे निज़ामिया इमाम मक्का मस्जिद रोज़ाना 3 पारे सुनाएंगे, जबकि तीसरे दहे में हाफिज़ कारी मोहम्मद रिजवान कुरैशी रोज़ाना 3 पारे तरावी में सुनाएंगे। इसी दौरान मक्का मस्जिद में हाउस की तामीर का काम मुकम्मिल हो चुका है और रमज़ान मुबारक के आगाज़ के साथ तौक़्क़े है कि मुसल्लियों के लिए हाउस से वज़ू की सहूलत बहाल हो जाएगी। तेलंगाना में कोरोना केसों में इजाफा जारी है। गुज़िश्ता 24 घंटों में नए केसों की तादाद 3000 से ज़ायद हो चुकी है। रियासत में एक्टिव केसेस और अमवात की तादाद में भी इजाफा देखा जा रहा है। महकमा सेहत के मुताबिक 3187 नए केसेस दर्ज किए गए, जबकि 7 अमवात हुई है। मास्क ना पहनने पर पुलिस की जानिब से सख्त कार्रवाई की जा रही है और गुज़िश्ता 6 दिन में तेलंगाना में 6478 अफराद के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए गए हैं। डीजीपी दफ्तर से जारी तफसीलात के मुताबिक 5 से 11 अप्रैल हैदराबाद, रच्चाकुंडा और साइबराबाद हुदूद में 3214 अफराद के खिलाफ केस दर्ज किए गए, जिनमें हैदराबाद में 2030 मुकदमात हैं। रामागुंडम, वरंगल, खम्मम, निज़ामाबाद, सिद्दीपेट और करीमनगर कमिश्नरेट हुदूद में
1374 केसेस दर्ज किए गए हैं, जबकि दीगर अजला में 1890 अफराद के खिलाफ कार्रवाई की गई। अवामी मुकामात पर मास्क के लुज़ूम पर सख्ती से अमल के सिलसिले में पुलिस ने सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया है और मास्क ना पहनने पर कार्रवाई की जा रही है। तेलंगाना में मास्क के अदम इस्तेमाल पर 1000 रुपये चालान किया जाएगा। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने आज जियो जारी करके मास्क के लुज़ूम की खिलाफ वर्जी पर 1000 रुपये जुर्माने के फैसले को नाफिज करने अहकाम जारी कर दिए हैं। चीफ सेक्रेटरी के अहकाम के मुताबिक वबाई अमराज पर काबू पाने ख़वानीन और मरकज़ी वज़ारत दाखिला की जानिब से 23 मार्च को जारी अहकाम का हवाला देते हुए कहा कि तेलंगाना में मास्क के लुज़ूम के सिलसिले में 27 मार्च को जियो जारी करके रहनुमाना खतूत जारी किए गए थे और आज जियो MS नंबर 82 जारी किया गया, जिसमें मास्क के लुज़ूम की खिलाफ वर्जी पर 1000 रुपये का चालान की गुंजाइश फराहम की गई है। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में आइंदा 28 घंटों में बारिश की पेशकशी की गई है। महकमा मौसमियात ने बताया कि बेशतर अजला और शहर में हल्की और तेज़ बारिश के साथ गरज चमक भी हो सकती है। कर्नाटक और महाराष्ट्र के अलावा केरला में हवा के दबाव में कमी के सबब ऐसी ही सूरत हाल रिकॉर्ड की जा रही है। तेलंगाना के बेशतर अजला में हवा के दबाव में कमी से दर्ज हरारत में मामूली कमी भी हो सकती है। आइंदा 2 दिन में शहर में गर्मी की शिद्दत में कमी के साथ कई इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश का भी इम्कान है। रियासत तेलंगाना में कोरोना के बढ़ते केसेस के पेश नज़र TRS हुकूमत वबा से शदीद मुतासरा मकामात पर रात का कर्फ्यू नाफिज करने के इम्कानात का जायज़ा ले रही है, क्योंकि बड़े टाउन्स में रात में 7 बजे से 9 बजे के दरमियान ज़्यादा तिजारती सरगर्मियाँ रहती है। इसलिए रात के कर्फ्यू के औकात 10 बजे रात से 6 बजे सुबह तक हो सकते हैं।